ردیف قافیہ بہر تو ہوتا ہے. یا وہ بتاتے تھے جو انیس کا بہت ذکر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے وہ انیس کیسے مصرے کو 4 چاند لگا دیتا ہے. مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ مجھ سے کہنے لگے ہلال یہ بتاؤ کہ یہ جو بند ہے انیس کا یہ اٹھے گا کیسے. انیس کی تعریف کرتے بتا رہے ہیں انیس نے وہ یہ کہتے تھے انیس نے مجھے سکھایا, میں تمہیں بتا رہا ہوں. اب ایک کربلا کا منظر ہے اور ایک جگہ فوج سپاہی حسینی کے کچھ لوگ ہیں اور ایک طرف یزید کے بھی لوگ ہیں. تلخ کلامی ہو رہی ہے, تلخ کلامی. اب آپ دیکھیے ایک بند نسیم صاحب پڑھ رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اٹھے کیسے مرثیہ, کیونکہ اٹھنا شرط ہے بھائی, تو آرٹ ہے نا, اس کو اٹھاؤ. تو بگڑے ابو تمامہ و سادے فلک سریر, یہ سمجھا رہے ہیں مجھے. تولی زہیر قین نے شمشیر بے نظیر, جوڑا کمام ابن مظاہر نے ایک تیر, بولے اسد کہ زجر کے قابل ہیں یہ شریر. آپ اس کو غیظ لشکر بدخو پہ آ گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں 5 مصرے ہو گئے, خاموشی ہے. میں نے کہا ملک تو خاموش بیٹھی ہے. انہوں نے کہا آپ دیکھو انیس کیا کرتا ہے 6ٹھے مصرے میں, آپ اس کو غیظ لشکر بدخو پہ آ گیا, غصے سے بل ہلال کے ابرو پہ آ گیا. واہ, اٹھ گئی مجلس. کہانی. تو وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اس طرح آپ اب مصرع لکھے 6ٹھا, اور یہ ان کے بہت زیادہ ہے. وہ تو جتنے برجستہ بیتیں لکھنے والے شاعر ہیں, لیے تھے دوش پہ اکبر جلیل ایسی تھی, ملال و نوک سے قبضہ اصیل ایسی تھی. تو اصغر صاحب چونکہ زندگی بات کر رہے ہیں نا, اسی یہ ذہن میں آ گیا. ان کے فن پہ بحث کرنا مقصد نہیں ہے کہ زندگی میں اتنے پختہ تھے کہ بہت محنت کرانے کے عادی, کہ محنت کرو اسے پھر لکھو پھر لکھو. یہ ان کے بہت ہنر تھا یہ. اور وسیم تو خود اس کو سمجھتے ہوں گے. ہم وسیم سے اب یہ پوچھا جائے کہ بھئی کس عمر میں یہ وہاں سے آ گئے اور والد سے کب ان کا ساتھ چھوٹ گیا. اور ظاہر ہے شروع میں ان کا کل پاکستان فروغ مرثیہ کے لیے کام کرنا مجھے یاد ہے. وہاں مجالس ہوتی تھیں ان کے, وسیم کا اس میں بڑا, کہ وہ دیکھتے تھے کہ نسیم صاحب کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی انہیں تڑپ ہوتی ہے اس بات کی. وہ تڑپ آج بھی ہے, وہ تڑپ نظر آتی ہے ان کی محنت میں. بابا کی اگر زندگی کو لیا جائے اور شعور سے ہم دیکھیں تو یعنی دادا اور پردادا کے انتقال کے بعد, جیسے کہ بابا نے لکھا ہے کہ پردادا جب کہ انتقال ہوا تو بابا کی عمر 3 سال تھی صرف, اور ہمارے دادا کا جب انتقال ہوا تو 5 سال تھی. یا یہ کہ اس کا وہ تھا کہ دادا کے 5 سال تھی اور جب اور پردادا کا ہوا تو 3 سال تھی, کچھ ایسا ہے. تو اب اس میں یہ کہ وہاں سے بابا اپنے آپ کو لے کے چلے, اور بابا کے ایک نانا تھے جو ظاہر ہے معاشی طور سے بہت اچھے نہیں تھے, مگر ظاہر علم تو وہاں تھا. اور ہماری دادی خود بہت اچھی عالمہ تھی, فارسی جانتی تھی, بلکہ بابا کی جو پہلی نعت تھی اس پہ انہوں نے, ہماری دادی نے اصلاح دی تھی, اور ایک مصرع وہ دادی نے بتایا تھا کہ اس کو یوں کر لو. دیکھیے خاندان تو نسیم صاحب کا تھا نا, یہ شعر کہنا تو بڑی بنیادوں میں شامل تھا. اس کے بعد ظاہر زندگی یہ بڑھتی رہی, اور پھر بابا اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں آئے تو اسکول وغیرہ میں ان کا پڑھانے کا سلسلہ ہوا. تو بابا امروہہ سے لکھنؤ نوگاں جاتے تھے پڑھانے کے لیے, اور امروہہ سے نوگاں جو ہے وہ 8.5 میل ہے. تو بابا کو گھوڑا دیا گیا تھا کہ آپ اس پہ چلے جایا کریں. تو ان کا نہیں, میں گھوڑا نہیں چلا سکتا, وہ یہ جانتے ہیں وہ تو ان معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے. تو وہاں سے پھر وہ اپنے 8.5 میل پیدل جانا, 8.5 میل پیدل آنا ڈیلی. اور رئیس پروری نے بھی لکھا ہے اپنے مضمون میں کہ ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ. تو وہاں سے چلیے, اور پھر یہ کہا جائے کہ اس کو اگر مختصر ہم کہیں کہ بابا ایک سیلف میڈ تھے, انہوں نے اپنا سلسلہ کیا. میرا یہ کہ میں چونکہ ان کی 11ویں اولاد تھا, اور میرے بعد ایک بیٹا اور ہوا تھا, مگر ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو بہت زیادہ بابا کے ساتھ نہیں رہا. بابا زیادہ تر یہ کہ لاہور میں رہتے تھے, ہم خیرپور میں رہتے تھے. پھر بابا کراچی آ گئے. کراچی آنے کے بعد 1-2 سال میں ان کے ساتھ رہا. تو 64 میں میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی, تو مجھے اور امی کو وہ اپنے ساتھ سندھ لے گئے. اور میں نے, میری پیدائش بھی خیرپور کی. خیر وہاں سے میں جو ہے وہاں سے میٹرک کیا میں نے کنڈیارو نواب شاہ سے, اور پھر میں 67 میں واپس آیا, اور
ब्लॉक 17 रहीमाबाद में बाबा रहते थे, वो मकान लिया था, वहाँ मैं उनके साथ रहा। और फिर 76 में मैं अपने सब तालीम वगैरह पूरी करके मैं एक सऊदी अरब चला गया, और उससे फिर मैं वहीं रहा। अब आता था हर साल बाबा से मिलने। बाबा भी एक दफ़ा आए थे जब उन्हें बुलाया था हज के लिए, हज किया बाबा ने, उम्रे किए। और उसके बाद वहाँ पे भी तकरीबन 16 मजलिसें हुई थी, हालांकि वो वहाँ पे ऐसे हालात नहीं थे कि मजालिस की जाए, ममनू था वहाँ। और ये अजीब उनकी सादगी थी जो मैं यहाँ चाहूँगा ज़िक्र करूँ कि मेरे घर से और हरम जो है वो 84 किलोमीटर था, डोर टू डोर। और वो उन्होंने कहा कि मैं हज जो है वो पैदल करूँगा। तो उन्होंने, लोगों ने कहा ये बहुत मुश्किल, यहाँ की गर्मी ऐसी है कि आप नहीं कर सकते। बहरहाल उनको जब बताया गया कि मसाइल होंगे और पुलिस भी इस चीज़ को मना करती है कि, तो फिर अब उनकी इधर आगे ज़िंदगी जो, फिर मैं अपने जब वापस आया तो आके कुछ दिन उनके साथ फिर रहा मैं, थोड़े दिन आता था बीच में। तो यहाँ जो उनकी सादगी का जैसे जिक्र हुआ था, वो सबसे ये कि वो सुबह उठते थे 4 बजे, अपने नमाज शब पढ़ते थे, उसके बाद अपने एक कप चाय, उनकी चाय बहुत शौक़ी थे और बहुत बड़ा कप था उनका, जिसमें पीते थे वो। और जाने तक दफ्तर वो तकरीबन ये कि 3 दफ़ा चाय पी लिया करते थे। फिर वो अपने रात का सालन और रात की रोटी बांध के ले जाया करते थे, और अपनी सवारी में रास्ते में से उनके दफ्तर के सेक्रेटरी थे सिद्दीकी साहब, उनको लेते हुए गए और दफ्तर में जाके फिर उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया। और फिर दोपहर में खाना नहीं खाते, चाय पीते रहते थे। शाम को जब 4 बजे आते थे तो थोड़ा सा अंडा हाफ फ्राई, हाफ बॉयल या हाफ फ्राई। और घरेलू ज़िंदगी ये थी कि हमसे कभी उन्होंने ये कि कोई कभी तल्ख़ कलामी या गुस्से में कुछ नहीं कहा। अगर कभी हम मिसाल के तौर पे फजर की नमाज में सोते रह गए तो बस इतना कहा कि तुम शायद रात देर से सोए थे, तो वो हमारे लिए हंटर होता था। तो कभी उन्होंने, और जो हमारा काम करने वाला था वो इत्तेफाक से शिया सैयद था, जुल्फ़िकार मुल्तान का रहने वाला, जुल्फ़ी कहते थे। तो बाबा उसे हमेशा, कभी अक्सर ही होता था कि वो आया और थका हुआ है तो है, अच्छा खाना निकाल के दिया उसने बाबा को, तो तुमने खाना खा लिया कि नहीं, तो फिर बैठ जाओ तुम भी साथ में। और वो उसके साथ नौकर के सामने खाना, कोई तकल्लुफ़ नहीं करते थे इसमें, उसे बिठा के अपने सोफ़े पे खाना खिलाते थे। और भी जो लोग थे मोहल्ले के, इसके सब ऐसे, जहाँ हम रहते थे वहाँ तकरीबन 40 मकान थे। तो एक हम शिया थे, बाकी 39 सुन्नी थे। उसमें जो है वो और 6 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा उन्हें चचा कहता था। और तमाम न्याज फातिहा ये वो जितनी भी चीज़ें होती थी वो बाबा करते थे तमाम 40 मकानों में। ये ब्लॉक 17 रहीमाबाद की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त तक 40 मकान ही बने थे वहाँ। तो ये इस सिलसिला। उसके बाद ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया और आपका सवाल था कि शागिर्द बाबा के बहुत थे, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ हो जाते थे, मगर जो होनहार शागिर्द थे वो 4-5 अगर मैं नाम लूँ तो उसमें फैज़ भरतपुरी थे, साहिल लखनवी थे, और ये कि डॉक्टर साहब का उसमें नाम आता है, लेकिन डॉक्टर साहब तो ज़ाहिर है अब हमारे सामने बैठे हैं और इन्हें तो ये तो इस वक्त इंडो पाक में इनकी एक बहुत बड़ी हैसियत है। और मैं अक्सर इनसे कह देता हूँ मजाक में कि घर की मुर्गी दाल बराबर हम तो आपको, मगर ये कि इनके लिए तो यानी मैंने देखा है कि बाज़ लोग जो है ना, इनका नाम लेते वक्त बड़े ऐसा लगता है कि वो उनमें एहतराम की कैफियत आ गई कि अब डॉक्टर हिलाल का नाम नहीं, वसीम ने ये सिलसिला दूसरा शुरू कर दिया, उसमें मेरा हवाले से आ गया। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि ये सही बात कह रहे हैं, नसीम साहब बड़े दुर्वेश आदमी। देखिए इससे आदमी पहचाना जाता है कि क्या लिबास के लिए कोई ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं है, जो पहन लिया, जो खाना, हाँ शेरवानी ये ज़रूर चाहते थे खैर शेरवानी उनके जिस्म पर नाप सही आए। इस सिलसिले में वो जो थे पापोश नगर में जी, जो हमारे, मैं नाम बोला हूँ, गुलाम अब्बास साहब, गुलाम अब्बास साहब, वो शेरवानी
मैं तो शेरवानी ज़रूर पसंद करते थे, कपड़ा कैसा होगा और गर्म हो अगर सर्दी के मौसम में, लेकिन वैसे बहुत सादे आदमी कि मतलब ये कि इतनी सादगी थी कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये इतना बड़ा आदमी है, अपने वक्त का सादा ज़िंदगी। अगर कोई मजबूरी पेश आ जाती है तो चीज़ों को निभा लेते थे, किसी बेटे को आवाज़ नहीं देंगे, खुद निकलेंगे गली के कोने पर, वहाँ पे का मार्केट है तो किसी को ये नहीं पता कि ये कितनी बड़ी शख्सियत यहाँ पे आई। अगर कोई साथ में बच्चा कोई चीज़ ले रहा है तो ठीक है वो ले ले, फिर वो कहेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। बहुत कम लोगों ने, देखिए उस ज़माने की वज़ादारी भी ये थी कि वो इन चीज़ों में नहीं, जैसे किसी ने कह दिया कि नसीम साहब हमारे यहाँ मरसिया पढ़ना है, उन्होंने देख लिया है कोई और बात तो नहीं है, कोई तारीख या कोई मुश्किल चले गए, कैसे जाना है क्या जाना है, कुछ वो मुतालबा नहीं कि मुझे ले जाएं, मुझे अच्छी आराम से गाड़ी लाएं, जो जिस तरह ले गया चले गया, वहाँ मरसिया पढ़ लिया। तो बहुत इसको देखिए, ये वही चीज़ें जो उनके मरसिए में आई है, ये सादगी और ये उनका तकाजा जो है ना मरसिया है। फिर देखिए कि जैसे वसीम साहब कह रहे थे कि सुबह उठ के वो मच रहे थे तरक्की उर्दू बोर्ड, अब ज़रा उनके आप देखिए हम असर जोश मलियाबादी, मौलवी अब्दुल हक, अब जोश साहब जैसा आदमी और मौलवी अब्दुल हक जैसा आदमी और नसीम औरवी साहब, तो ये बड़ी मतलब ये मिल के काम करना और बिल्कुल हैरतनाक तौर पे काम होता था। नसीम साहब पे जोश साहब भी ट्रस्ट करते थे। वो फरंग इकबाल में उनका जोश का कौल है कि मैं लफ्ज़ पर नसीम औरवी की इल्मी गिरफ्त का मोतरफ रहा हूँ। बल्कि नसीम साहब ने लिखा मरसिया जोश में कि जोश साहब से मैंने पूछा कि अनवासना की शरह है क्या और क्या सनद, तो एक लफ्ज़ पे बहस हो रही है, जोश ये कह रहे हैं और अब्दुल हक साहब ये कह रहे हैं और नसीम साहब ये कह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों से बेनियाज, घरों के मसाइल क्या है, किस तरह घर चलेगा, कैसे होगा, मेहनत की जो कमाया वो ला के अपने शरीक सफ़र को दिया और घर इस तरह चलता था। यानी उनकी ज़िंदगी बड़ी मिसाली ज़िंदगी मैं कहना चाहता हूँ। कम लोग ऐसे होंगे उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी। और फिर देखिए एक मुतवस्सित और गरीब ख़ानदान के फ़र्द थे नसीम साहब। नसीम साहब कोई लखपति आदमी नहीं थे। हमारे बहुत से ऐसे मरसिया निगार हैं माशाल्लाह जिनके पास बहुत कुछ था, लेकिन नसीम साहब इस मामले में बिल्कुल दुर्वेश, जो है खुदा ने दिया उस पर सब्र शुरू करना, काने रहना और काम करना, उनको इल्मी काम के अलावा कोई गरज नहीं थी। एक मरतबा मेरा दिल बड़ा बुरा हो गया कि किसी ने कह दिया कि हिलाल नसीम रोही से लिखवाते, तो मेरा चेहरा अटक गया। मैंने कहा उनके मौलाना मेरे बारे में फलां ने ये कहा, तो उनने फिर संजीदगी से कहा इस पर आजूदा मत हुआ करो, मगर एक बात याद रखो, कलम की ताकत सबको पीछे छोड़ देती है। क्या कहना, हमेशा ये कहते थे कि कलम की ताकत से काम लो। और उन्हें खुशी भी हुई कि जब थोड़ा सा मैंने मेहनत की और सामने आया, मतलब शागिर्दों पे मोहब्बत करना। सब बताइए मेरा पीएचडी हो रहा है, वो मुझे मुबारकबाद का ख़त भेज रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि तुम्हारा पीएचडी हो गया मुकम्मल। और एक ख़त में लिखा भी कि मैं इंशाल्लाह तुम्हारे मकाले की इशाअत का इंतज़ाम करूँगा। लेकिन वो ज़्यादा हयात नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। तो ये ज़िंदगी देखिए, ये हम इतने 25-24 मिनट में ऐसे लोगों का ज़िंदगी को समेट नहीं सकते, ये सिर्फ चंद शेड है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और नाजरीन, पहले प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, मगर दूसरे एपिसोड में इसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम दोबारा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।